Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone. So this is the second video from the exercise 8.5. लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था सम नंबर 12 तक. सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 13 से. सम नंबर 13 1 इंटीग्रेशन 7 sin to the power 7x dx. Okay, so first sin to the power 7 means sin to the power 6 into sin x. Now sin to the power 6 means sin square x whole cube sin x. Sin square means 1 minus cos square x whole cube sin x. Now let cos x equal to z. Then minus sin x dx equal to dz. So now 1 minus as cos x equal to z, so 1 minus z square हो गया और यहाँ पर sin x dx का वैल्यू हो गया माइनस dz. सो माइनस यहाँ पर dz. ना इसको सेपरेट करके हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे. तो पहले यहाँ पर अप्लाई करना होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब. दैट मीन्स a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 1, दैट मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, नाउ सेपरेट दिस वन. सो माइनस 1 dz माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन z टू द पावर 6 dz माइनस माइनस प्लस 3 integration z square dz and then plus minus minus 3 integration z to the power 4 dz. So now integration dz means minus z to the power 6 z to the 7 by 7 3 z square, so 3 into z cube by 3 minus 3 z to the power 4, so 3 z to the power 5 by 5 plus c. Now put down the value of z, so minus cos x plus cos to the power 7x by 7, 3 cancel out, cos cube x minus 3 cos to the power 5x by 5 plus c. 13.2 integration sin x cot cube x dx. Sin x, cot means cos by sin, so cos cube by sin cube. Sin cancel out with sin cube, it will be sin square, and cos cube as cos square into cos x. So now cos square means 1 minus sin square cos x by sin square x. So now let sin x equal to z, so cos x dx equal to dz. So 1 minus z square cos x dx equal to dz हो गया और यहाँ पर sin square means z square. So z square, that means 1 by z square dz, and z square by z square it will be 1. So here z to the power minus 1 by minus 1 minus z plus c. Put down the value of z, it will be minus 1 by sin x, as z to the power minus 1 means 1 by z. So minus 1 by sin x minus sin x plus c. That is your answer. Sum number 14.1 integration cos cube x root sin x dx. Cos cube means again cos square into cos, then root sin x dx. Now cos square means 1 minus sin square cos x dx root sin x. Now let sin x equal to z. So cos x dx equal to dz. So 1 minus z square by root z dz. Then 1 by root z means z to the power minus half minus, and z square by root z means z to the power 3 by 2 dz. So z to the power minus half का इंटीग्रेशन हो गया root z by half, then minus z to the power 5 by 2 by 5 by 2 plus c. So 2 root sin x minus 2 by 5 sin x to the power 5 by 2 plus c. Next one, sum number 14.2 integration sin x cos cube x by 1 plus cos square x dx. So now here cos x equal to z. So that means minus sin x dx equal to dz. So now sin x dx that equal to z minus here, and cos cube means z cube. Here 1 plus cos square, that means 1 plus z square. Okay. Now z cube by 1 plus z square. और मैंने पहले भी बोला था अगर नीचे का जो पावर ऊपर से अगर छोटा होगा तो इसको आप क्या करेंगे, हमको डिवाइड करना होगा. एज यहाँ पर z टू द पावर 2 है, यहाँ पर z टू द पावर 3 है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है. सो z स्क्वायर प्लस 1 बाई z क्यूब डिवाइड करना है. यहाँ पर कोशेंट आ गया z और रिमाइंडर आ गया माइनस z. अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले यहाँ पर कोशेंट लिखना है. ओके, फिर यहाँ पर प्लस साइन देना है और यहाँ पर रिमाइंडर बाई डिवीज़र लिखना है. अब यहाँ पर रिमाइंडर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दिया है, और फॉर्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवीज़र. सो माइनस इंटीग्रेशन z dz माइनस माइनस प्लस z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 dz. सो z का इंटीग्रेशन हो गया z स्क्वायर बाई 2, देन हाफ, यहाँ पर मैंने 2 एडजस्ट किया है क्योंकि z स्क्वायर प्लस 1 इसका अगर डेरिवेटिव करें तो यहाँ पर 2z आएगा, इसलिए मैंने बाहर में एक हाफ ले लिया और यहाँ पर 2z दे दिया.
तो इसका मतलब नीचे का जो वेरिएबल दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो 2z आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और होगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा लॉग जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और इसको आप जेड स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर कोई भी लेट कर सकते हैं। तो हियर जेड स्क्वायर प्लस 1 लेट पी, उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो माइनस जेड स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देन हाफ लॉग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 15(1), इंटीग्रेशन कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। सो लेट लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दैट इक्वल टू जेड। अब लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, दैट मीन्स 1 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर से क्या करना होगा, कोसेक एक्स और कॉट एक्स को फिर से डेरिवेटिव करना होगा। अब कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, सो इट विल बी प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इक्वल टू डी जेड। ओके, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आएगा कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। और यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक एक्स डी एक्स, सो दैट विल बी जेड डी जेड, दैट मीन्स जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो नाउ पुट डाउन द वैल्यू ऑफ जेड, सो हाफ लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। सम नंबर 15(2), इंटीग्रेशन लॉग tan x by 2 by sin x dx. Okay, as same as the previous one. So log tan x by 2 equal to z. इसका मतलब हो गया 1 by tan x by 2, फिर tan x by 2 का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x by 2 आएगा, फिर x by 2 का डेरिवेटिव करना है दैट इक्वल टू हाफ। चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। सो dx इक्वल टू dz, सो इट विल बी sec स्क्वायर मीन्स 1 by cos स्क्वायर x by 2, tan x मीन्स sin x by 2 cos x by 2, सो cos कैंसिल आउट, और यहाँ पर dx by 2 रहेगा दैट इक्वल टू dz। सो नीचे आ गया 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स। सो डी एक्स बाई साइन एक्स दैट इक्वल टू डी जेड। सो इंटीग्रेशन जेड डी जेड एज डी एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू डी जेड, जेड स्क्वायर बाई 2, फिर वहाँ पर जेड का वैल्यू बिठाना होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जाके हम मुझको SMS कर सकते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 16(1), इंटीग्रेशन sec to the power 4x dx. So here sec to the power 4 means sec square x into sec square x dx. Now sec square means 1 plus tan square x. So into sec square x dx. Now tan x equal to z. Let tan x equal to z, then sec square x dx equal to dz. So that means 1 plus z square dz. Now separate this one, integration dz plus integration z square dz. So it will be z plus z cube by 3 plus c. So tan x plus tan cube x by 3 plus c. Next 16(2), integration tan square x sec to the power 4x dx. So now here sec to the power 4 means again sec square into sec square. Instead of sec square, write down 1 plus tan square x. So now tan x equal to z, then sec square x dx equal to dz. So it will be z square into 1 plus z square dz. So now z square integration dz, and then z square into z square z to the power 4 integration z to the power 4 dz. So it will be z to the power cube by 3 plus z to the power 5 by 5 plus c. So that equal to tan cube x by 3 plus tan to the power 5x by 5 plus c. Okay. Next 17(1), integration tan to the power 5 root x sec square root x by root x dx. Okay, so first let tan root x equal to z. tan का डेरिवेटिव होता है sec square, so sec square root x. फिर से root x का डेरिवेटिव करना होगा 1 by 2 root x dx that equal to dz. So now 1 by 2, तो 2 यहाँ पर चला गया, 2 इंटीग्रेशन z to the power 5 dz. z to the power 5 का इंटीग्रेशन होता है z to the power 6 by 6. 2 cancel out with 6, it becomes 3. So z to the power 6 by 3. So 1 by 3 10 to the power 6 root x plus c. Next 17(2), integration cos x minus sin x by root 1 plus sin 2x dx. So first here 1 plus sin 2x. Now 1 means you know sin square x plus cos square x, and sin 2x means 2 sin x cos x. So it will be the formula of sin plus cos whole square. As here is root, so that means only sin plus cos. Okay, as sin plus cos
होल स्क्वायर दैट विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो न्यूमरेटर में यहाँ पर है cos x माइनस साइन एक्स और नीचे है cos x प्लस साइन एक्स। सो नाउ लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू z। सो cos का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन का होता है माइनस साइन एक्स। सो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट इक्वल टू डी जेड। ऊपर में वही दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो इट विल बी 1 बाई जेड डी जेड, दैट मीन्स log जेड सी। सो log mod साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। नेक्स्ट सम नंबर 18(1), integration x by root x plus 4 dx. So first let x plus 4 equal to z, then x equal to dz. Okay, so as here x plus 4 equal to z, then z equal to, that means x equal to z minus 4, x equal to z minus 4. So here dx equal to dz. So that means instead of dx write down dz, and instead of x write down z minus 4. So z minus 4, now root z. So z by root z, that means root z, and here minus, here 4, then 1 by root z means z to the power minus half. So it will be z to the power 3 by 2 by 3 by 2 minus 4 into z to the power half by half plus c. So it will be 2 by 3 x plus 4 3 by 2 minus 8 root x plus 4. 2 into 4 8 and its root x plus 4 plus c. Next 19(1), integration x by x square plus 1 whole square dx. So let x square plus 1 equal to z, then 2x dx equal to dz. So it will be half x dx dz by z square. So half z to the power minus 1 by minus 1 plus c. So minus half 1 by x square plus 1 plus c. It's very easy. Next 19(2), integration x square by 4 plus x whole to the power 3 by 2. So first let 4 plus x equal to z, then dx equal to dz, and here x equal to z minus 4. So here z minus 4 whole square by z to the power 3 by 2. A minus b whole square formula, a square minus 2ab plus b square. Now separate this one, it will be z to the power half, 8, z by z to the power 3 by 2, z to the power minus half, 16, and here 1 by z to the power 3 by 2, so z to the power minus 3 by 2. Now integration this one. So z to the power half will be z to the power 3 by 2 by 3 by 2, 8, z to the power minus half will be z to the power half by half, 16, z to the power minus 3 by 2, that will be z to the power minus half by minus half plus c. So here 2 by 3 and z means 4 plus x, so 4 plus x whole to the power 3 by 2. Then 2 into 8, 16, 4 plus x whole to the power half, here minus 2 into 16, 32, 1 by z to the power half, that means root over x plus 4 plus c. Next sum number 21, integration 4x cube root 5 minus x square dx. So first let 5 minus x square equal to z, so minus 2x dx equal to dz. अब यहाँ पर माइनस 2x नहीं है, माइनस 2x dx लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 को पहले डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 में, सो 2 इंटू 2 4 आ गया, और एक्स क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए आ गया 2x dx दैट इक्वल टू माइनस dz। सो माइनस यहाँ पर भेज दिया, 2 तो पहले से ही था यहाँ पर, और 2x dx की जगह dz हो गया। अब यहाँ पर है रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी रूट z, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 5 माइनस जेड। सो 5 माइनस जेड रूट जेड डी जेड। अब रूट जेड को मल्टीप्लाई कर दो इससे, सो 5 इंटू 2 10 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन रूट जेड, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर है, और जेड इंटू रूट जेड, जेड टू द पावर 3 by 2। ओके, फिर वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस वन, देन पुट डाउन द वैल्यू ऑफ जेड एंड यू विल गेट योर आंसर। 22, इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस रूट एक्स। ओके, सो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे। अब रूट एक्स अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1। नाउ लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू जेड। रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया हाफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स डी जेड। अब यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स तो था पहले से ही, 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड दैट इक्वल टू 2 log z प्लस c। Okay, so that equal to 2 log root x minus 1 plus c. Sum number 21(1), integration x by 1 plus root x dx.
Okay, so root x equal to z, then x equal to z square, then dx equal to 2z dz. Okay, so dx equal to 2z dz, 2 बाहर चला गया, यहाँ पर z dz. Now x means z square, so write down z square and 1 plus z. और मैंने पहले भी बोला था अगर ऊपर का जो पावर और नीचे से अगर बड़ा है तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा. अब डिवाइड करेंगे 1 प्लस जेड और यहाँ पर आ गया हमका जेड स्क्वायर इंटू जेड, दैट मीन जेड क्यू चला गया. अब जेड क्यू से डिवाइड करने पर यहाँ पर कोसेंट आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1. अब डिवाइड तो तुमको आता ही है. सो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया -1. अब फॉर्मूला क्या था, मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मूला होता है पहले आपको कोसेंट लिखना होगा, फिर प्लस देना होगा, फिर रिमाइंडर बाय डिवीज़र, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीज़र. सो इट विल बी नाउ, यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे. so, पहले जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे जेड क्यूब बाई 3, फिर जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बाई 2, 1 का जेड होगा और यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और 1 बाई जेड प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया लॉग जेड प्लस 1. मैंने यहाँ पर स्टेप जंप किया है. अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर जेड रूट एक्स है, सो एक्स टू दी पावर 3/2. फिर यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट एक्स लॉग रूट एक्स प्लस 1 प्लस c. Sum number 21(2). It's a little bit lengthy problem, so listen very carefully and observe it. Integration x to the power half 1 plus x to the power 3/4. Now 3/4 means x to the power 1/4 whole cube. So first let x to the power 1/4 that equal to z. So x equal to z to the power 4. So dx equal to 4z cube dz. Okay. So that means dx equal to 4z cube. 4 बाहर चला गया, यहाँ पर z cube dz हो गया. अब x to the power 4 equal to z, that means x to the power half equal to z square. So 1 plus z cube. Okay, as this one equal to z, so z cube. So now ऊपर में z square and z cube, z 5 हो गया, नीचे 1 plus z square. इसका मतलब ऊपर का पावर ज़्यादा है, नीचे का पावर छोटा है, तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. आपको तो मालूम ही होगा. पहले डिवाइड करेंगे z क्यूब प्लस 1 z टू दी पावर 5, सो z स्क्वायर होकर z टू दी पावर 5 हो गया, देन प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया माइनस z स्क्वायर, कोसेंट आ गया z स्क्वायर. सेम फार्मूला होता है, पहले कोसेंट फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर बाय डिवीज़र, दैट इज z क्यूब प्लस 1. ओके, सो नाउ सेपरेट दिस वन, 4 इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz माइनस 4 इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई z क्यूब प्लस 1. अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको दूसरी बार लेट करना होगा. सो z क्यूब प्लस 1, अगर z क्यूब प्लस 1 इसको लेट करेंगे, सो z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू p आ गया. सो 3z स्क्वायर dz इक्वल टू dp, ऊपर में z स्क्वायर दिया हुआ है, सो 3 बाहर चला गया, 4/3 1/p, सो इसके बाद log p हो जाएगा. नाउ पुट डाउन द वैल्यू ऑफ z, इट विल बी x टू द पावर 3/4, 4/3 log. पहले यहाँ पर क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको p का वैल्यू बिठाना होगा. अब p का वैल्यू क्या था, p इक्वल टू z क्यूब प्लस 1, सो z क्यूब प्लस 1. फिर यहाँ पर z का वैल्यू भी बिठाना होगा. अब z का वैल्यू क्या था, x टू दी पावर 1/4, सो x टू दी पावर 3/4 प्लस 1 प्लस c. नेक्स्ट सम नंबर 22(1). इंटीग्रेशन dx बाई रूट x प्लस 1 प्लस क्यूब रूट x प्लस 1. ओके, सो रूट x प्लस 1 टू दी पावर हाफ एंड क्यूब रूट मीन्स x प्लस 1 टू दी पावर 1/3. सो फर्स्ट लेट x प्लस 1 टू दी पावर 1/6 इक्वल टू z. Then x plus 1 equal to z to the power 6, dx equal to 6z to the power 5. So 6 यहाँ पर चला गया, z to the power 5 dz. Now x plus 1 यहाँ पर whole to the power half था, so whole to the power half means z cube. Okay? अगर यहाँ पर z cube करेंगे, so x plus 1 whole to the power half आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि 1/6 into 3, 1/6 into 3 it will be 1/2. Again यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे, so 1/6 into 2 that will be 1/3. So x plus 1 whole to the power 1/3 that equal to z square. So now यहाँ नीचे से z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. अब z स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा z क्यूब बाई z प्लस 1 dz. सो 6 इंटीग्रेशन z क्यूब बाई z प्लस 1 dz. और यही इंटीग्रेशन था सम नंबर 21(1). सम नंबर 21(1) में ऐसे ही था इंटीग्रेशन z क्यूब बाई z प्लस 1. सो वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया था z क्यूब बाई 3 माइनस z स्क्वायर बाई 2 प्लस z माइनस लॉग z प्लस 1. मैंने डायरेक्टली कर दिया. अगर कोई प्रॉब्लम हो सम नंबर 21(1) देख सकते हैं. सो यहाँ से अगर z का वैल्यू बिठा देंगे, सो 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 क्यों हुआ, 3 कैंसिल आउट विथ 6, सो 2 एक्स प्लस 1 होल टू द पावर हाफ
then 2 cancel out 6, 3, x plus 1 whole to the power 1 by 3, then 6 into x plus 1 whole to the power 1 by 6, and then minus 6 log x plus 1 whole to the power 1 by 6 plus 1 plus c. 22, 2. Integration dx by 1, 22, 2. Integration dx by root 1 plus root x. So let root 1 plus root x equal to z, then 1 plus root x equal to z square, then root x equal to z square minus 1, then x equal to z square minus 1 whole square. Now डेरिवेटिव, सो dx इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव होगा 2z स्क्वायर माइनस 1, फिर z स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 2z dz, सो इट विल बी 4z z स्क्वायर माइनस 1 dz. सो dx की जगह यहाँ पर हो गया 4z z स्क्वायर माइनस 1 dz और नीचे आ गया z, z कैंसिल आउट, 4 आउटसाइड, सो इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz माइनस 4 dz मैंने सेपरेट कर दिया. सो 4 इंटू जेड क्यूब बाई 3 माइनस 4z प्लस सी, सो 4 बाई 3 रूट 1 प्लस रूट एक्स होल क्यूब माइनस 4 इंटू रूट 1 plus root x plus c. Next, sum number 23, 1. It's very easy. Integration sin 2x by a square plus b square sin square x whole square dx. So first let a square plus b square sin square x equal to z. So it will be 0 and b square 2 sin x cos x dx equal to dz. The formula of 2 sin x cos x that equal to sin 2x. So sin 2x dx that equal to dz by b square. So 1 by b square keeping outside, इंटीग्रेशन dz बाई जे स्क्वायर. अब z स्क्वायर इट मीन z टू द पावर माइनस 2, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया z टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल टू द पावर माइनस 1 प्लस सी. नेक्स्ट, सम नंबर 23, 2. This is the very important problem in your exercise. Okay, so listen very carefully and observe it. Okay, so first integration root over 1 plus x square by x to the power 4 dx. Okay, अब लगातार हम जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर हम किसी एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. जैसे मान लो किसी एक चीज़ को हम z पकड़ रहे हैं, बट यहाँ पर हमको डिफरेंट थिंग करना होगा. क्या करना होगा, यहाँ पर हम x इक्वल टू टेन थीटा पकड़ेंगे. अब आप हमको बोल सकते हो हम x इक्वल टू टेन थीटा क्यों पकड़ेंगे और कैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि x इक्वल टू टेन थीटा ही पकड़ना है. एज यहाँ पर एक ट्रिक है, एज यहाँ पर दिया हुआ है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सो वहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पकड़ सकते हैं. बट लिसन वेरी, बट x इक्वल टू टेन थीटा विल नॉट वर्क फॉर ऑल द टाइम. Generally we used as in the question 1 plus x square, then we let x equal to tan theta, but that doesn't mean it will work for all the problem. But maximum case where root 1 plus x square is given, then you can let x equal to tan theta. So first as x equal to tan theta, then dx equal to derivative of tan theta sec square theta d theta. Okay, clear? So now root 1 plus tan square, so 1 plus tan square theta, x to the power 4 mean 10 to the power 4 theta, and instead of dx write down sec square theta d theta. Now 1 plus tan square theta means sec square theta, so root means sec theta into sec square, it will be sec cube theta. Okay, sec cube theta d theta, then 10 to the power 4 theta. Now sec cube means 1 by cos cube, and 10 to the power 4 means sin to the power 4 by cos to the power 4. ऊपर चला गया, so cos cube and cos 4, so it will be cos theta by sin to the power 4 theta d theta. Clear? Cos theta by sin to the power 4 theta d theta. Now let sin theta equal to z, then cos theta d theta equal to dz, so it will be integration z to the power minus 4 dz, that equal to z to the power minus 3 by minus 3 plus c. Okay, so it will be now here sin to the power theta, or you can write down like in this way, sin theta to the power minus 3. Okay, sin theta to the power minus 3 by minus 3 plus 3. So sin theta to the power minus 3 means 1 by sin cube theta. So minus 1 by 3, 1 by sin cube theta plus c. अब थीटा तो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में आपके पास x था. ओके, और मैंने यहाँ पर पहले पकड़ा था x इक्वल टू टेन थीटा. नाउ x इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन टेन थीटा इक्वल टू x बाई 1. ओके, अब टेन थीटा का क्या होता है रेशियो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस. So in a triangle, if x by 1, that means here the perpendicular will be x and base equal to 1.
सो हाइपोटेनस क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यू नो द फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब उस हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. सो एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई साइन क्यूब थीटा. इसका मतलब एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब. सो इट विल बी एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब. So the final answer will be minus, here minus, and 1 plus x square root, so 3 by 2 and then 3x cube plus c. ओके, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पर जो साइन थीटा है वो साइन थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना. जैसे हमने पहले पकड़ा था x इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वहाँ से हाइपोटेनस निकल के फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है. यही चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए. कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में. सम नंबर 3, नेक्स्ट वन एज सेम एज द प्रीवियस वन. यहाँ पर भी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. सो लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा डी एक्स इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा. नाउ रिप्लेस दिस वन सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. That will be sec theta, sec square theta cancel out. So sec theta into cos square theta by sin square theta d theta. Then cos theta by sin square theta. Okay. Now again sin theta equal to z. Then cos theta d theta equal to dz. So it will be integration dz by z square. It will be z to the power minus 1 by minus 1 plus c. So minus 1 sin theta whole to the power minus 1 plus c. अब फिर से sin theta का वैल्यू निकालना होगा. So पिछले प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था sin theta इक्वल टू एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ट्राइंगल फॉर्म करके आपको सॉल्व करना होगा. अगर प्रॉब्लम होगा तो आप 23 जो लास्ट प्रॉब्लम था 23(2) वहाँ देख सकते हैं. सो माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1. सो इट विल बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी. देखिए मैंने तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया, लेकिन आप तो नहीं कर सकते. तो मेरा एक मानना है कि आप पहले क्या कीजिए, आप पहले पूरा प्रॉब्लम देख लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करें वीडियो को स्टॉप कर दीजिए. स्टॉप करने के बाद एक एक लाइन फिर से देखिए. जैसे मैंने यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर कैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे सेक थीटा हो गया. एक एक लाइन फिर से देखिए. देखने के बाद खुद से सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे चेंज हुआ है. फिर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे. आई होप उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो नाउ सम नंबर 24. This is the last sum in your exercise. So I hope you like my video. If you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. So इसके बाद 8.5 ख़त्म हो गया. हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 8.6 स्टार्ट करेंगे. ओके, सो 24(1) इंटीग्रेशन x e to the power k x स्क्वायर dx दैट इक्वल टू 1/4 e to the power 2x स्क्वायर प्लस c. ओके, गिवन दिया हुआ है. अब क्या निकालना है, इससे आपको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. सो फर्स्ट लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू z. इट विल बी 2x dx dz. ओके, देन 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर kz dz. अब e टू द पावर kz का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर kz और यहाँ पर 1/k होगा क्योंकि z का कोफिशिएंट k दिया हुआ है. सो इट विल बी 1/2k e टू द पावर k स्क्वायर प्लस c. आंसर दिया हुआ था 1/4 e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस c. अगर इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए k है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 इंटू के, यहाँ पर 1/4 है. इसका मतलब k का वैल्यू हो गया 2. नेक्स्ट वन सम नंबर 2. इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 साइन 5x टू द पावर 7 dx दैट इक्वल टू k बाई 5 cos 5x टू द पावर 7 प्लस c. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. सो फर्स्ट लेट x टू द पावर 7 इक्वल टू z. Then 7x to the power 6 dx equal to dz. So 1/7 इंटीग्रेशन sin 5z dz. sin 5z का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 5z by 5 plus c. So minus 1/35 cos 5 to the power 5 into x to the power 7 plus c. Now compare this both answer. So it will be here k by 5, that means minus 1/35. So k equal to minus 1/7. That is your answer.